کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. بابے تو شاعری کر رہے ہیں. اچھا, لیکن میرے دوست جو ہیں وہ ابھی بھی تھوڑا سا مجھے گمراہ سمجھتے ہیں. مگر تسی سمجھو اسی کہنا ہی کہنا جی میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے شاہی کوئی نہیں. کیونکہ میں جس بھی جمعے میں جاتا تھا وہاں جا کے میں بندہ کنفیوز ہی رہتا تھا کہ یار یہ کچھ اور بات کر رہا ہے, یہ مولوی دوسرے موت میں جاتا ہے یہ کچھ اور کر رہا ہے, مطلب کہ ایک سینس نہیں بنتی تھی. میں نے کہا یار تم لوگ غیر اللہ کے لیے لڑ رہے ہو اور میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں, میں اس سے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا. کتابوں میں کیا کیا بکواسیات لکھی ہوئی ہیں جو ہم کو پتہ چلی ہیں, پہلے کوئی نہیں تھا پتہ کہ کس کس نے اپنے نام کے کلمے پڑھوایا. اگر یہ نہ تو ہم نے تو ایسے ہی بس زندگی گزار کے چلے جانا تھا. ایسے ایسے صحابہ کرام کے جو نام جن کا بہت قربانی ہے, اور محلے کے علماء جنہوں کہتے ہیں نا مولوی, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. ہوتا کہ میں نے خواب میں دیکھا یہ جو کیمرہ مین آپ ہی ہیں, آپ کی جگہ پہ میں بیٹھا ہوں, سامنے کوئی شخصیت علی بھائی کی جگہ پر ہے, ارد گرد لوگ ہیں نظر نہیں آ رہے, پیچھے سے علی بھائی آتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کون ہے. میری اکیڈمی پہلی دفعہ ہے, وہ شاید آخری دفعہ ہوگا, میں نے کیمرے میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا, فرسٹ ٹائم دیکھا ہے. اچھا, تو میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں, پیچھے سے علی بھائی آتے ہیں, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, میں پوچھتا ہوں علی بھائی یہ کون شخصیت آپ تو یہاں ہے؟ مجھے کہتے ہیں وہ رسول اللہ. کہ سب سے پہلے تو معذرت کروں گا انجینئر صاحب سے, ظاہر ہے پہلے ان کا تعارف مجھے نیگیٹو ہی ہوا تھا, تو ظاہر جس طرح باقی لوگوں نے برا بھلا کہتا تھا میں بھی ویسے ہی کہتا تھا. ایک مولوی کو آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے سنا ہی نہیں جاتا, سیدھی سی بات, کیونکہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. ہاں کسی کا گوسیا وہ پڑھ کے مطلب امداد کون, ہاں ٹھیک ہے, وہ پڑھ کے انہوں نے ہمیں پلانا جی, ہم نے بڑے خوشی ہیں. وہ واقعی اس طرح کا ہوا کہ ایک ہفتہ پہلے میں مسجد میں جاتا نماز پڑھتے, جیسے ہم سنیوں کے طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں ویسے نماز میں ادا کر رہا تھا, قادیانیوں کے طریقے سے, سنیوں کی طرح, قادیانیوں کے طریقے سے. نہیں میں تو خود ہی سن رہا تھا, مجھے تو اچھا لگتا تھا, لیکن جو ارد گرد لوگ تھے نا وہ نہیں تھے سننے دے رہے. وہ کہہ رہے تھے کسی کو نہ سنا کرو, گمراہ جو گئی ہوگا وہ ہوگا. بریلوی میں پیدا ہوا تھا شروع سے, بریلویوں میں. پھر میری جب نماز پڑھتے مولوی صاحب نے دیکھ لیا رفع یدین پہ, تو انہوں نے پھر 45 منٹ میرے پہ تقریر پہ لگا دیا. اچھا, اس ٹیکنالوجی کے دور میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب کی اس دور میں ضرورت ہے. تو ان سے انسپائر ہوئے, تو پھر جب میں نے گھر والوں کو کہا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں, تپ گئے میرے گھر والے. بس ٹھیک ہے, جب وہ ادھر سے گئے ہیں نا تو ہمیں جب ادھر آئے ہیں سارے معاملات میں نے خود دیکھے ہیں. اچھا, تو میرے سامنے تھا سب کچھ, کون جیتا ہے کون آ رہا ہے. وہ اقرار الحسن والی بات ہے, اقرار الحسن گیا ہے تو بلاوڑے باہر سے ہی ہو کے بس نکل کے چلا گیا, تو میں جیت گیا بھائی. پہلے میں سنتا تھا مکی جادی صاحب جو حرم میں بیٹھتے جی پتہ, تو میں بڑے شوق سے ان کو سنتا تھا. تو وہ بڑے گندے سوال لیتے ہیں. وہ خیر وہ سنتے تھے. جی نہیں. اچھا, تو ہم تو دنیا کے رسالے ڈائجسٹ سب کچھ پڑھ ڈالا, اور جو پڑھنے والا تھا وہ نہیں پڑھا. جو نہیں پڑھا, اللہ اکبر, کیا خوبصورت بات کی ہے. آیا ہوں, کافی اچھا محسوس ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ بات ہوتی ہے علمی اور کتابی ریفرنس دے کے. یہ نہیں ہے جی کہ 1965 میں جی وہ داتا صاحب نے بامبو پکڑے اور ہم تب ماشاءاللہ کہتے سبحان اللہ کہتے تھے. ٹھیک ہے, وہ ایک کہانی سی چالی ہوتی تھی, کہانیاں مزہ دیکھا جو بچپن میں نانی دادی بھی تو کہانی سناتی تھی نا, وہ سلانے کے لیے ہوتی ہے نا کہانی. تو ہاں کہانی سننے کے لیے بڑی ہوگی, اب سونا نہیں ہے, آنکھیں کھولنی. تو میں کہا صاحب جس دن آپ نے شروع کر دیا نا تو آپ کا چندہ بند ہو جانا مسجد کی وجہ سے, اور آپ کی ڈیوٹی بھی ختم ہو جانی ہے. جو انتظامیہ انہوں نے آپ کو اٹھا کے کہیں اور پھینک دینا ہے. آپ ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں فائنانس پہ بھی اثر پڑا, اور یہ مطلب جب بتانا پڑ رہا ہے رجسٹرز کا سامنا بھی ہے, تو صحابہ کی لائف پڑھی
रसूलुल्लाह की खुद लाइफ मैं हिस्ट्री हूँ। अब पता चला? बिल्कुल बिल्कुल। अब पता चला? यहाँ तो आवे का भी बिगड़ा हुआ है सारा। अब पता चला सर, बिल्कुल, सामने जब बिल्कुल। बाप और बेटा होते थे तो क्या जिगरे थे उनके। कि अगर हम इन फ़िरका वारियत को अगर हमने डिफीट करना है तो इसके अगेंस्ट हमारे पास कुरान और सुन्नत का नॉलेज है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो अली भाई से ये कि इतनी सुबह से निकलें, इतना टाइम निकाल के, और बाहर ही बैठे रहें, अंदर बुलाए नहीं किसी ने। अभी क्या स्टेटस है, वो पढ़ने दे रहे हैं? अभी कोई रोक नहीं सकता। मैं हाँ, तो हाँ। उसी तरीके से आमीन भी कहता हूँ। नहीं, आप शरारत करते हैं ना? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ ना। नहीं, डरने की बात है, शरारत भी नहीं करनी ना। मेरे नबी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद फरहान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहलम अकेडमी फरहान कुरैशी। जैसा कि आप देख रहे हैं सेशन ख़त्म हो चुका है, हाल में आए हुए लोगों से कुछ बात करते हैं। तो आइए, अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आदिल। आदिल भाई किधर से आए? मैं लाहौर से। लाहौर से। जी। कौन से एरिया से? अली पार्क एक्सटेंशन से, एयरपोर्ट। अच्छा, खैरियत थी? क्या करने आए थे? जी, स्पेशल इसी काम के लिए। अच्छा, स्पेशल इसी काम के लिए? जी, मिलना था। इंजीनियर साहब, ज़िंदगी में एक शौक़ था, तो इस सिलसिले में एक नेक बंदों से मिलने का एक जुस्तजू थी, तो इसलिए आया। इनका तारुफ कैसे हुआ था? एक दो भाई ने स्टेटस लगाया था, तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा पिक किया था। और एक इनकी वीडियो थी, ये जो हमारी करंट हुकूमत इमरान खान और नवाज शरीफ की, तो वो मैंने देखी थी। तो उसमें तज्जिया मैंने देखा था, तो जो ट्रूथ लवर जो थे उसके बेस के ऊपर फिर मैंने इनको सुनना शुरू किया। फिर मैंने अली भाई की एक वीडियो जो है ना, मतलब हर सहाबी के ऊपर, तब से फिर मुझे डीपली पता लगता गया। दीनी शौक, दीन को समझने का, सीखने का पहले से भी था? पहले से था। अच्छा, इससे पहले किन को सुनते थे? इससे पहले मैं मौलाना तारक जमील को भी सुना। उसके बाद फिर मैंने खिलाफत मुल्कियत पढ़ी, ठीक है, मौलाना मदूदी की। उसके बाद फिर मैंने बेसिकली मैं बहरीन में होता है, ठीक है, वहाँ से फिर थोड़ा जो पहले मुझे था इस तरह कायदे नज़रियात क्लियर पहले से थे या इंजीनियर साहब को सुनने के बाद काफ़ी रहनुमाई सुनने मिली? के बाद, क्योंकि मैं जिस भी जुमे में जाता था वहाँ जाके मैं बंदा कंफ्यूज ही रहता था कि यार ये कुछ और बात कर रहा है, ये मौलवी दूसरे बूथ में जाता है, ये कुछ और कर रहा है, मतलब एक सेंस नहीं बनती थी। जिसकी वजह जब मैंने इनको सुनना शुरू किया, फिर ये था कि ये सच्चाई तो है, एक फ्लो तो है। वैसे मुझे कोई पता नहीं था लगता। फर्स्ट टाइम आया? हाँ, ये मेरा पहला। आज सेशन पूरा देखा? हाँ, कैसा था आज का सेशन? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा था। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद फवाद। मोहम्मद फवाद। आपका? मोहम्मद जवाद। जवाद। आपका? फराज अली। सब इकट्ठे आए हो? हाँ जी। कितने दोस्त हो? ये मेरे भाई हैं हाँ, और हाँ। ये दोस्त है। अच्छा, कितने बंदे हो? 3 बंदे हैं। 3 बंदे। किधर से आए हो? मंगोवाल से, गुजरात के आगे। मंगोवाल मंगोवाल गरबी से। खैरियत थी? कैसे आना हुआ? मैं तो किसी दफ़ा आया हूँ, अभी इनको लेके आया हूँ भाई को। अच्छा। और दोस्त को लेके आया हूँ। ठीक, पहले भी आ चुका हूँ 2 दफ़ा। अच्छा, भाई को पहले लेके आए? हाँ जी, पहले दफ़ा लेके आए। आप खुद आए हैं या ज़बरदस्ती लाया? नहीं, मैं खुद ही आना चाह रहा था, लेकिन पहले आने नहीं था हो रहा। अच्छा, दुकानदारी भी इस वजह से कोशिश सुनते थे इंजीनियर साहब को? 2012-13 से सुन रहा हूँ इनको। अच्छा जी। कैसा तारुफ था? नेगेटिव था, पॉजिटिव था? नहीं, मैं तो खुद ही सुन रहा था, मुझे तो अच्छा लगता था, लेकिन जो इर्द गिर्द लोग थे ना, वो नहीं थे सुनने दे रहे। वो कह रहे थे किसी को ना सुना करो, गुमराह हो गई, ये होगा वो होगा। आपके लोग गुजरात वाले तो फतवे भी लगाते हैं हमारे पास, बहुत कुछ कर रहे हैं सारे। हाँ। हमारे उधर दोस्त भी हैं, कुछ वो भी मना करते हैं कि इसको ना सुनो, तुम गुमराह हो रहे हो, क्या हो रहे हो, तुमको हो गए गुमराह। सच्चे कह रहे थे ना वो? बात काटिए, पहले ये देवबंदी थी। अच्छा, देवबंदी। मैं खुद भी लास्ट बार भी आपको बताया था। अच्छा, कौन सी वीडियो थी जो इंजीनियर साहब की हिदायत का सबब बनी या समझ आई कि हाथ क्या है? क्या ये जो सुननी थी, जो अभी आज इसका जिक्र हुआ है ना, अहले बैत के बारे में। हाँ, इस बार की ये सुन के फिर पता चला। बकाया जो हमारे ये जो पुजारी हैं बाबू के, खास तौर पे वो सुन के बड़ा हुआ। और जो मेन बात थी ना, जो वो कलमा पढ़ाया हुआ है, थानवी रसूलुल्लाह, वो वाले, वो तो मुझे, अब मैं साथ ही हमारी मस्जिद है घर के, तो ज़ाहिर बात जब आँख खोली है तो उधर ही बस नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो कभी किसी ने बताया नहीं कि देवबंद के जो है ना अकाबरीन जो बड़े, उनका ये अकीदा था। वो तो बस इनकी वीडियो सुनी, बयान सुने इंजीनियर साहब की, तो पता चला मुझे। तो फिर ऐसा दिल उनसे मुतनफ़र हुआ कि अब दिल ही नहीं करता। दावत का काम घर वालों को बेपर मेहनत कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं। मैंने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, फैमिली का,
اس میں سارے جو ہے نا ریلیٹیوز ایڈ ہیں ان کو میں وقتاً وقتاً تصویریں جو ہے نا ویڈیو سینڈ کرتا رہتا ہوں. صحیح ہوگا, کافی چینجنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا فرسٹ ٹائم ہے آپ؟ جی میں کیسا تھا ایکسپیرینس آج؟ بہت اچھا لگا. آج پروگرام سارا دیکھا؟ جی سارا دیکھا پروگرام. لوگ جو آئے ہوئے ہیں دیکھا آج کس تعداد میں لوگ آئے ہوئے جی ہیں؟ بہت زیادہ آئے ہیں. سننے میں یہ علماء کہتے ہیں یہ کمرے سے بھی نہیں نکلتا اور بندے بھی اپنے ہوتے ہیں, یہ بس بات ٹھیک ہوتی ہے؟ میں نے بس کافی لوگوں کو جب یہ وہ ادھر آئے تھے نا, وہ کراچی والے مفتی صاحب جو کھڑے ہو کے چلے گئے تھے, تو میرے سسرال والے بھی میرے اور دوسرے بھی نا وہ بھائی بھی اور ارد گرد کے لوگ بھی کہتے تھے وہ آپ کے جو انجینئر صاحب ہے وہ باہر نہیں نکلے, اس طرح کے تانے وغیرہ کافی ملتے تھے. پھر میں تو آگے سے خاموش ہو گیا تھا. میں پھر کیا کہتا, میں نے کہا پتہ نہیں ان کو کوئی اور معاملہ ہو گیا, وہ کیوں نہیں سامنے آئے. اس کے بعد ایک اور مفتی صاحب پچھلے دنوں میں جو آئے رہے ہیں, منیف قریشی صاحب, تو ان کے سامنے بھی انجینئر صاحب پھر کافی لوگ کہہ رہے تھے یہ کیوں نہیں ہے سامنے, یہ ہے وہ ہے. تو بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ انجینئر صاحب نہ ہوتے, ہم کو نہیں تھا پتہ چلنا کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. ان کتابوں میں کیا کیا بکواسیات لکھی ہوئی ہیں جو ہم کو پتہ چلی ہیں. پہلے کوئی نہیں تھا پتہ کہ کس کس نے اپنے نام کے کلمے پڑھوایا. اگر یہ نہ تو ہم نے تو ایسے ہی بس زندگی گزار کے چلے جانا تھا. ہم ان کا کوئی نہیں تھا پتہ چلنا, جو بھی ہم کو ان باتوں کا پتہ چلا. انجینئر صاحب باہر نکلے یا نہ نکلے, اس سے 2812 غلط نہیں ہو جائے گی, اس سے رفع دل ختم نہیں ہو جائے گا. اس لیے انجینئر صاحب کا بھی کوئی ایکٹ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. بات تو وہ جو بتا رہے ہیں وہ لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا. ہاں باقی ایک چال یہ چلتی ہے کہ اللہ چلتا ہے. یہ جتنی لوگوں نے چالیں چلی نا یہاں پہ آ کے ہم جہلم فتح کر لیا, تو آپ اس کا رزلٹ دیکھیں کتنے لوگ جو ہماری لائف سٹوریز بھی آ کے بتا رہے ہیں کہ بھی تعارف تب ہوا جب مفتی آیا, تعارف تب ہوا جب دوسرا مفتی آیا. باقی بات رہی قریشی صاحب کی, تو ان کے تو اپنے جو مسئلے کے وہ ان کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ گمراہ یہ رافضی ہے. جی ان کی اپنی وقت کوئی نہیں. پہلے وہ اپنا تو کلیئر کرا لیں کہ وہ اہل سنت کے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو رافضی ہے, نیم شیعہ ہے, نیم رافضی شیعہ ہے. تو پہلے وہ یہ کلیئر کریں, صحیح بات ہے, پھر ہم اس سے مناظرہ کریں. ایسے کیسے مناظرہ کریں؟ نہیں وہ تو یہ جواب وہ تو آپشن رکھا ہوا ہے نا مفتی منیب صاحب, بلکہ انہوں نے ریسنٹلی پوڈ کاسٹ کیا نہ کر گئے ہیں. انہوں نے بولا جی میں نہیں کوئی بات ہی ختم ہو گئی, سارے جو دوسرے وہ ختم ہو گئے. چل بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. کیا نام ہے بھائی جان؟ امانت علی. امانت علی. امانت علی مغل قادیانی. نو اچھا وہ مغل مرزا مغل لگ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں مرزا لگتا ہے, ہمارے ساتھ مغل لگتا ہے. اچھا سوری, کہاں سے آئے؟ میں گجرانوالہ سے ایک ساتھ گاؤں میں رہتے گا. گجرانوالہ بھی ماشاء اللہ زرخیز زمین ہو گئی ہے ماشاء اللہ. اب تو بہت سارے اسٹوڈنٹ ہاں رونقیں لگ گئی ہیں. میں تو کافی دفعہ ادھر آیا ہوں, اور ابھی میرے دوست کچھ سے جو ادھر علاقے میں جو بھی اپنا کوئی انجینئر صاحب سے متاثر ہوتا ہے وہ مجھے ساتھ لے کے آتا ہے, مانت بھائی آپ ساتھ چلے ہمارے. کافی دفعہ دوست اس وجہ سے لے کے آئے مجھے, تو میں تو الحمدللہ آتے رہتے ہیں. ہاں کافی دفعہ آ گیا مجھ سے. اچھا آپ پہلے اہل حدیث میں تھے ادھر؟ اہل حدیث میں نہیں, میں شروع سے ہمارا جو خاندان ہے وہ بریلوی طبقہ ہے. بریلوی سے کنورٹ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. بریلوی طبقہ ہے, تو بس جب علی بھائی کو سنا تھا میں نے, اللہ پاک نے بیٹا دیا مجھے, اس کا ہم نے کرنا تھا عقیقہ. تب ویڈیوز لگائی تو بس جو عقیقے کے متعلق ہمارے حنفی بھائی جو کہتے ہیں صحیح ہے وہ اس سے والے باقی معاملہ تھا, قربانی کا معاملہ ہے, جس طرح وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. اس وقت بھی تھوڑا سا نا ذہن میں اپنا کوئی شک تھا کہ یہ بات غلط ہے. تو بس اللہ پاک جب وسیلہ بن گیا, وہ ویڈیو وسیلہ بن گیا. تو میں نے یوٹیوب پہ جا کے جب چیک کیا نا حقیقت کے متعلق, تو انڈین کے نا وہ ایک ایڈوکیٹ فیض ہے اسمارٹ سے, ان کی ویڈیو سنی. انہوں نے بھی اس طرح بتایا کہ یہ جو اپنا عقیقے کی سنت اور یہ دوسری جی بالکل یہ ڈفرینٹ, ان کو گڑبڑ نہ کریں. جی اس پہ جان کا ذکر ہے. تو اسی طرح پھر آہستہ آہستہ جب علی بھائی کا اپنا دیکھا چہرہ پگڑی سر پہ, تو پھر ساتھ محمد علی مرزا بھی لکھا دیکھا, ان کی بھی دیکھی ویڈیو, تو بہت ایک اٹریکشن تھی. تو پھر آہستہ آہستہ جب ان کی ویڈیو دیکھتے گئے, ریفرنس چیک کرتے گئے, بس آہستہ آہستہ بس ان سے محبت ہوتی گئی. تو الحمدللہ آج اللہ کا لاکھ شکر ہے, توحید کی سمجھ آئی ہے, اہل بیت کا مقام سمجھ آیا. پہلے تو بالکل نہیں پتا تھا. بالکل صحیح بات. ایسے صحابہ کرام کے جو نام جن کا بہت قربانی ہے, اور ہمارے محلے کے علماء جنہوں کہتے ہیں نا مولوی, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کا لاکھ شکر ہے, علی بھائی سے اپنا اللہ پاک ہمارا رابطہ کرایا, اور ہمیں الحمدللہ. چلے بہت شکریہ, جزاک اللہ. اچھا السلام علیکم. چلو وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ علی رضا. علی رضا, کدھر سے آئے ہو؟ گجرانوالہ سے. گجرانوالہ سے. ہاں جی. اس بچے کا کیا نام ہے؟ ساتھ میرا بیٹا ہے محمد اذان. کیسے کیوں آئے ہو, کیا کرنا تھا؟ ویسے آئے ہو.
इंजीनियर साहब को जानते हो? देखा हुआ है? इनका नारा आता है, इनका कोई नारा मार के दिखाना। बोलो। कोई नारा आता है? ये क्या कहते हैं? जो बोलते हो आप बोलो। बाबे तो शायरी कर रही है। अच्छा जी, आगे आ चले। अरे भाई कैसे आना हुआ और साथ बच्चे को भी ले आए? उसका दिल कह रहा था बाबा के साथ जाना है मैंने, ठीक है। तो मैं माशाल्लाह अपनी लाइफ में अली भाई से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। जब मैंने उनकी एक आयत क्लिप में वीडियो में मैंने सुनी थी कि उन्होंने सूरतुल माइदा की आयत बयान की थी कि आपके इंडिया पाकिस्तान के सारे बाबे जो है ना वो इस आयत पे आके जो है ना ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। मैं उस आयत से उनकी उस डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था, जिसकी वजह से मैंने इनको लाइक करना शुरू किया, इनकी वीडियोज़ को, इनके चैनल्स को। तो वैसे मेरे जो दोस्त हैं वो अभी भी जो है ना वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे अपना जो आईडी है वो कोशिश कर रहा हूँ दी कुरान और सुन्नत रिसर्च अकेडमी इंजीनियर साहब के जो बताए हुए हैं उनके मुताबिक। लेकिन मेरे दोस्त जो हैं वो अभी भी थोड़ा सा मुझे गुमराह समझते हैं। मैं कहता तुम समझो असी कहना ही कहना जो मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे शाही कोई नहीं। सुभान अल्लाह। लेकिन वो जो गुमराह समझती है ना उनसे बहस नहीं करनी। वो बताया ना इंजीनियर साहब ने आज भी बताया, वीडियोस भी बताई हैं, वो देखें हिकमत सीखें। हाँ जी, वो असल में कुरान और सुन्नत का इनकार कर रहे हैं, वो इंजीनियर साहब का इनकार नहीं कर रहे, कुरान और सुन्नत का इनकार कर रहे हैं। हाँ जी, बस वो नई सीधी राह पे आना चाहते हैं, उनकी मर्जी। चलो दावत तो रखेंगे ना। अल्लाह ताला ने जैसे नबियों को भेजा है, मैं इस दौर में, आज के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में समझता हूँ कि इंजीनियर साहब की इस दौर में ज़रूरत है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अपने बंदों को उठाता है। रसूलुल्लाह के जो है ना उनके कदमों तक लेके जाने वाले मुजाहिद उठते हैं जो रसूलुल्लाह के कदमों तक लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, ठीक है। अल्लाह का पैगाम देना है, मैसेज देना है, हर मुसलमान तक हदायत पहुंचानी है, ठीक है। यही नबियों का काम है, यही आगे नबी अपनी उम्मत को सिखा के गए हैं। जी जी, ठीक है, पूरी उम्मत ये हमने क़यामत तक जारी रखना है, ठीक है। ये सब कुछ जो मैं इंजीनियर साहब से सीखा है, मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जी आज भाई उनका नंबर मसली नहीं करना। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा अब्दुल मुर्तज़ा। अब्दुल मुर्तज़ा, किधर से आए हो? रावलपिंडी। रावलपिंडी से जी। खैरियत थी? कैसे आना हुआ? बस मुलाकात के लिए आए हैं। मुलाकात तारुफ कैसे हुआ था? तारुफ काजी साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी ना, इनकी कटिंग क्लिप था एक। अच्छा। जिसमें उन्होंने कहा तारुफ काजी को फांसी दे दो या इस तरह का। अच्छा। वो क्लिप पूरा सुना एक दफ़ा जाके, तो उधर से फिर तारुफ हुआ। तो बाकी पेशा मेरा ऑफिस का है ना, जाता हूँ सुबह तलावत लगाता था, तो लेक्चर लगाता था बस सुन के। फिर उसके बाद 3 माह मुझे कोई कैद काटनी पड़ी, वहाँ पे जाके मेरा काफ़ी नज़रिया चेंज हुआ। फिर जब मैं कैद से निकला तो मैं चेंज था। अच्छा, कैद इसी वजह से या कोई अपना इशू? बस अपना वो अच्छा कोई सियासी मसला। अच्छा ठीक होगा। अच्छा, वहाँ पे बैठ के आपने तसल्ली से खुद को गौर किया, वीडियोस को सुना? वीडियो वहाँ नहीं सुनी, वीडियो में पहले सुनता था, लेकिन खुद गौर किया ठीक है कि हम क्या कर रहे हैं। बरेलवी में मैं पैदा हुआ था शुरू से, बरेलवियों में। फिर मेरी जब नमाज पढ़ते मौलवी साहब ने देख लिया रफ़ा दैन पे, अच्छा, तो उन्होंने फिर 45 मिनट मेरे पे तकरीर पे लगा दिया। अच्छा, जो मेरे मस्जिद के खतीब है माशाल्लाह। तो मैंने कोई माइंड नहीं किया, अभी भी जाकर उनके पास आराम से बैठता हूँ, बातें करता हूँ। जबरदस्त, बिल्कुल। ये भी खामोश तबलीग है। आपको पता है जो आपके साथ वाले हैं ना वो तो देख रहे हैं ना किसको क्या हो गया है। ऐसे ही मेरे काफी हमारे दोस्त हैं, 10-12 हम दोस्त हैं जो इकट्ठे हैं। कोई भी इशू बनता है, हम ग्रुप बनाया था हमने, हम उससे मसला करते हैं। अभी मेरे साथ और भी दोस्त आए हुए, तो इस तरह हम बस रहते हैं आपस में। कोई मसला होता है तो हम फर्स्ट टाइम आए इधर? फर्स्ट टाइम आए। कैसा था आज का प्रोग्राम? अच्छा ठीक है। मैं शागिर्द भी हूँ एक बंदे का, अच्छा, जिनके साथ मुनाजरा होना था। अच्छा हाँ। अच्छा, दीन में पारा वगैरह पढ़ा? मंतिक पढ़ी है। अच्छा, मंतिक पढ़ी है, यानी आप प्रोफेशनली उनके पास जाते थे? मैंने दरस निज़ामी पढ़ा है। अच्छा ठीक हो गया। वो तो जीत के गए हैं, फातिहा थे। बस वो मुझे पता है लेकिन जीत के गए। वो तो बड़े जनाब, वो जाके अपने पीर साहब के कदम में चूम रहे थे, पीर साहब नारे फूल। बस ठीक है, जब वो इधर से गए हैं ना, तो हमें जब इधर आए हैं सारे मामलात मैंने खुद देखे हैं। अच्छा, तो मेरे सामने था सब कुछ, कौन जीता है कौन आ रहा है। वो इकरारुल हसन वाली बात है, इकरारुल हसन गया है तो बुलावड़े बाहर से ही होके बस निकल के चला गया तो मैं जीत गया भाई। तो वही बात है ये सारी। चल अल्लाह ताला उनको हिदायत है। जज़ाकल्लाह।
आ जाए पहले ये सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? तो मेरा नाम शहबाज अहमद है। शहबाज अहमद लाहौर किधर से है? लाहौर से हैं। लाहौर कौन सी जगह से? लाहौर कोट लखपत से। कोट लखपत से। तकरीबन 2 साल से प्लान बना रहा था अली भाई की तरफ आने का, तो मामला तो जिस तरह के बन नहीं सकते। मैं अपनी लाइफ की छोटी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। वो मैं बड़ी देर से प्लान बना था कि जब मैं आऊँगा ये मुझे चीज़ बताऊँगा। जैसे कि अली भाई ने हमें कहा था कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं ना, तो आपकी मोहल्ले की जो मस्जिद का इमाम है वो आपको आके नहीं पूछता कि बेटा तुम नमाज पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हो या क्यों नहीं आ रही है। हमारे मोहल्ले का कोई बुजुर्ग हमें आके नहीं मना करेगा। बिल्कुल सही है। जैसे हम रफल दैन के साथ नमाज पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिर सब लोग हमें आके कहते हैं कि भाई तुम ऐसे नमाज क्यों पढ़ रहे हो, तुम मुशरिक क्यों हो चुके हो, तुम मुनाफिक क्यों हो चुके हो, तुमने ये तरीका क्यों अडॉप्ट किया। तब हमें बातें करना स्टार्ट की। अब ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में कुछ हुआ कि मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे ये अली भाई की वीडियोस वगैरह शेयर की थी, तो उसके बाद मैंने शुरू किया। वाकई इस तरह का हुआ कि एक हफ़्ता पहले मैं मस्जिद में जाता नमाज़ पढ़ते, जैसे हम सुन्नियों के तरीके से नमाज़ अदा करते हैं वैसे नमाज में अदा कर रहा था। कादियानियों के तरीके से, सुन्नियों की तरह, कादियानियों के तरीके से। अच्छा, उस तरीके से मैं नमाज अदा कर रहा था। और मेरे बड़े भाई भी है साथ में, तो वो रफल दैन के साथ नमाज अदा कर रहे थे। तो कारी साहब ने कि उनको देख लिया कि यार ये बंदा किस तरीके से नमाज अदा कर रहा है। कारी साहब ने मुझे बिठाया अपने पास, कहता है यार शहबाज तुम तो बड़े अच्छे बंदे हो, तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं जानता हूँ, बड़ी अच्छी महफिलें मनाने वाले। अच्छा, वो रफल दैन से पढ़ रहे थे? हाँ, मेरे बड़े भाई क्योंकि अली भाई की वीडियो देख चुके थे और उन्होंने रफल दैन स्टार्ट कर दिया हुआ। सही है। मैंने तब तक नहीं स्टार्ट किया। ठीक है। कारी साहब ने बड़े भाई को देख लिया कि भैया ये किस तरीके से नमाज अदा कर रहा है। उन्होंने मुझे बिठाया, मुझे कह रहे हैं कि यार ये तुम्हारा भाई किस रास्ते पे चल गया है, वो तो नमाज ही नहीं अदा कर रहा सही तरीके से, उसको समझाओ, उसको बनाओ, कौन से मुनाफिक रास्ते पे चल गया। एक हफ्ते की बात हुई, मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं और मेरा भाई बड़ा मस्जिद में दोनों जाके एक हफ्ते के बाद दोनों रफल दैन के साथ नमाज अदा करना स्टार्ट हो गए। और फिर वही वाली बात कि कारी साहब हमें समझाना स्टार्ट हो गए, मना करना स्टार्ट हो गए। तो फिर मैंने उनको वो वाली बातें दिखाई कि सर हम इन चीज़ों से देख रहे हैं कि रफल दैन जायज़ है और हम उस तरीके से नमाज अदा करेंगे। तो ये वही वाली बात है कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो किसी को मसला नहीं है, पर अगर आप सही तरीके से नमाज पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप 10 बंदे खड़े होते हैं कि यार तुम किस रास्ते में नमाज पढ़ रहे हो, क्या क्या। अभी क्या स्टेटस है, वो पढ़ने दे रहे हैं? अभी कोई रोक नहीं सकता। मैं तो उसी तरीके से आमीन भी कहता हूँ। आप शरारत करते हैं? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ ना। डरने की बात है, शरारत भी नहीं करनी ना। वो तो उस लिहाज से तो मुझे मेरे कज़नों ने भी काफिर करार दे दिया गया है, क्योंकि वो हज़रत अली मदद कहते होते थे और पता नहीं कौन कौन सी बातें कहते होते थे। और मेरी ग्रुप में उनसे बड़ी बहस हुई है इस वजह से, और उन्होंने मुझे काफिर कह दिया था। पर मैंने उनको लास्ट टाइम जब मैंने ये सारा मामला वाइंड अप किया, क्योंकि इनसे बहस नहीं की जा सकती, इनको अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। मैंने जब ये मामला वाइंड अप किया था, मैंने एक बोल बोला था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा यार तुम लोग गैर अल्लाह के लिए लड़ रहे हो और मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा हूँ, मैं इससे ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोगों में एक ज़ोम भी हो जाता है ना, जब हमें समझ आती है ना, हम समझते हैं हमारे से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कोई नहीं। यार ऐसे नहीं करते, हमेशा हिकमत से हमें खुद भी देखना चाहिए ना। अगर हम एक चीज़ पे अल्लाह ताला ने हमें हदायत का रास्ता तो दिखा दिया, अखलाकियात तरबियत भी तो हमने सीख, तो इसलिए जो है ना ये लोग हमें काफिर कहेंगे। मेरी अभी तक कोशिश जारी है, मेरी अभी तक कोशिश जारी है कि मैं इन सब भाइयों को इस रास्ते के ऊपर लेके आऊँ। जैसे जैसे मुझे चीज़ें मिलती हैं मैं उनको बता रहा हूँ। लेके आने का एक तरीका है, वो भी सीखें। अगर आप कह रहे हैं ना कि मैं और के पीछे ऊंची आमीन कहता हूँ, मैं आपको सच्ची बताऊँ तो ये कोई बहादुरी नहीं है, मतलब ये शरारत है ना। देखा जाए तो ये शरारत है। आप अपनी आराम से अमीन के इतनी कहें कि जितनी कहनी चाहिए। हाँ, इनसे जिद लेने की जरूरत नहीं है। खामोश तबलीग है करते रहे, देखने वाले साथ वाले खुद ब खुद आपको देखेंगे और इंशाल्लाह और भी रफ़ाए ज़हन में कन्वर्ट होंगे। हाँ, बेहतर ये है या ना कि वो बेहतर है कि वो मौलवी आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, आपको मस्जिद निकाल दे। ऐसे नहीं, वो तो नहीं निकाल सकता। नहीं, वैसे होता है ना, लोग आते हैं हमें बताते हैं कि निकाल दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हाफिज़ अज़ीम है, मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से कौन सी जगह? लाहौर इच्छा से। लाहौर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। लाहौर जो है ना, हर आप देखेंगे हर दर्स पे जो है ना तकरीबन 20 से 30 लोग लाहौर के होते हैं। जी ऐसे ही है सर। मेरे भी बहुत से दोस्त मेरे से खफा हो रहे हैं कि यार हमें नहीं लेकर गया, तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं उनके साथ भी आऊँगा। बाकी सबसे पहले तो माज़रत ही करूँगा इंजीनियर साहब से। ज़ाहिर है पहले उनका तारुफ मुझे नेगेटिव ही हुआ था, तो ज़ाहिर जिस तरह बाकी लोगों ने बुरा भला कहता था मैं भी वैसे ही कहता था। फिर इतना मैं दावे से कह सकता हूँ, कोई भी उनकी एक वीडियो पूरी देख लेगा ना तो पक्की बात है वो उनका स्टूडेंट बन जाएगा। यही तो बात है, वो देखने नहीं देते, वो कहते देखनी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, सुना वो कहते नहीं देखनी। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी जो अहले बैत का इन्होंने हमें तारुफ करवाया ना, वो हमारे उलमा ने भी नहीं करवाया था, और जो इंजीनियर का तारुफ हमें हमारे उलमा ने करवाया था ना, वो शायद इंजीनियर साहब ने करवाया। बहुत शुक्रिया सर।
सही हो गया। फर्स्ट टाइम आए? जी सर, मैं फर्स्ट टाइम। कैसा था आज का प्रोग्राम? सर बहुत खुशी हुई है, मेरा एक ख्वाब पूरा हो गया। अच्छा यस। चले, उलमा तो ये कहते हैं कि इनका अपना कमरा होता है, बंदे भी इसके अपने होते हैं, सवाल बाहर नहीं निकलता। आज क्या देखा आपने? सर नहीं, जितनी मैंने मेजोरिटी वही है जो फर्स्ट टाइम आई है, जो और ज़्यादा इनमें यंग जनरेशन है सर। ये मतलब किसी को कह के तो नहीं, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आ सकता। और वो जो कहते हैं कि ये गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख साहबा और ये वो, देखिए इस तरह की नहीं सर, बात कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी चीज़ बयान करते हैं उसका रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस? हाँ जी, ये करते हैं बात रेफरेंस के साथ। और इनके गेस्ट जो है वो बाबों के कॉल आ रहे होते हैं रिप्लाई में, या इस तरह की बातें आ रही थी। चल अगली दफ़ा दोस्तों को भी लेके आइए इंशाल्लाह, ज़रूर लेकर आऊँगा। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भैया? जी मेरा नाम गुलाम हुसैन, मैं लाहौर से हूँ। गुलाम हुसैन? गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा जी, शादबाग लाहौर से हूँ मैं। ठीक हो गया। तो पहले तो मैंने जो है ना उलमा कराम की तरफ इतना नहीं था, ना ही मैं मौलवी को सुनता था। तो कभी जो है ना स्टेटस लगा दिए जुमे को, फ्राइडे को। तो बाद में ये हुआ, किस चीज़ का? दीनी को स्टेटस? जी बिल्कुल। अच्छा। तो बाद में जब जो है ना मुझे इनका बिल्कुल भी, इंजीनियर साहब का बिल्कुल भी तारुफ नहीं था। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब स्टेटस पे देखा तो दोस्तों ने क्रॉस वाली पिक्चर लगाई हुई थी। ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा कि इसके ऊपर क्रॉस क्यों लगाया हुआ। तो पहले तो मैं ना एक मेंटालिटी जो बनी हुई है माशरे के, जो जिस तरफ झुकाव ज़्यादा उस तरफ हो जाओ। सही है। तो सबका जब मैंने देखा क्रॉस वाला स्टेटस है तो मैंने डेफिनेटली नहीं सुना। ठीक है। तो फिर ऑफिस में ये हुआ कि एक दोस्त ने कहा कि यार इंजीनियर साहब ना बहुत राइट बात करते हैं। तो मैंने फिर मेरे जहन में आया, यार मैंने क्रॉस देखा, मैं सुनूँ तो सही। फिर मैंने सुना, ऑफिस में बैठे हुए, ऑफिस में मैं साथ काम करता था। तो एक सुना, दो सुना, तीन सुना, फिर 8 घंटे की शिफ्ट में साथ इंजीनियर साहब चलता था 8 घंटे। तो साथ में जो है ना काम करता था। फिर उनकी पुरानी सारी वीडियो सुनी, सारी मजलिस उनकी सारी सुनी, और आने वाली नई वीडियोस देखी। फिर ये हुआ कि इंजीनियर साहब तो पजीराई करके हमें, और इंजीनियर के स्टूडेंट्स जो है ना, इंजीनियर साहब ने वो जो लोग सोशल मीडिया से वाकिफ थे, जो अपना टाइम मूवीज में, गानों में लगाते थे, वो खत्म कर दिया। वो सोशल मीडिया पर इंजीनियर को सुनते हैं। बिल्कुल ऐसा क्रेज है 8 घंटे। यकीन करें, एक मौलवी को आधा घंटा 2 घंटे सुना ही नहीं जाता। सीधी सी बात, क्योंकि नींद आना शुरू हो जाती है। आगे से कोई ऐसी बात आ नहीं रही होती है जिसमें इंटरेस्ट बिल्ड हो, जो हमें पता लगे कि यार ये हमारे फायदे की है। अच्छा। ठीक है। वो एक कहानी सी चाली होती थी। कहानियां मजा देखा हम जो बचपन में नानी दादी भी तो कहानी सुनाती थी ना। वो चाली होती थी। तो वो सुलाने के लिए होती है ना कहानी। तो हाँ, कहानी सुनने के लिए अब बड़ी होगी। अब सोना नहीं है, आंखें खोलनी। और अब सुनने शुरू करते हैं, सुनने बैठते हैं। तो आप यकीन करें, मैंने एक वीडियो रिपीट भी देखी है कई बार। तो कभी लगे ही नहीं कि मैं जो बोर हो रहा हूँ, मैंने रिपीट देखी है। क्योंकि हर बार जो है ना एक रूह ताज़ा होने वाली बात है। तो एक चीज़ इस तरह के, जैसे गंदे पानी में साफ पानी डालते रहो, वो एकदम साफ हो जाता है। इस तरह के काम। और दावत का काम कैसा चल रहा है? घर वालों को भी समझाया? जी बिल्कुल। पहले तो मैंने वो बातें लगाई जो एक इंजीनियर साहब बिल्कुल जो है ना सीधी जो बिल्कुल सही है, जबरदस्त, बिल्कुल सही है। तो जब उनका इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ तो फिर मैंने जो है ना स्टेप ढूंढ लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें यह है कि कुछ इख्तलाफात होते हैं जो एक, क्योंकि वो बिल्कुल इन बर्न में उनके साथ। हाँ, सारी बात है। लेकिन जो मेरी जनरेशन का है, जैसे बहन होगी, वाइफ होगी, मैं तो वो मेरे साथ है। तो अगर मदर है या फिर फादर है, बाकी लोग हैं, तो वो थोड़े से इन बर्न में हैं। तो वो साथ कुछ चीज़ों में चलते हैं, कुछ चीज़ों में वो पीछे हट जाते हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर जा रहा है। बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। आइए भैया। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? ज़रियाब। मैं भी लाहौर से हूँ। लाहौर साथ हो? लाहौर से जी, साथ है मेरे। अच्छा, हम 4 का ग्रुप था जो भी गए। अच्छा। जी जी। अच्छा ज़रियाब भाई, आपको लेके आए हैं या खुद आए हो? अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही आया हूँ। अच्छा, कब से सुन रहे हो? अप्रॉक्सीमेटली 3 सालों से। दिल करता था आऊँ यहाँ पे विज़िट करूँ इंजीनियर साहब के पास, बट पिछले 3 सालों में नहीं हो सका। तो आज फिर अचानक हम चारों दोस्तों ने प्लान बनाया कि चलाओ आज चलते हैं फिर यार। अच्छा, जो आपका बचपन में जो घर से, फैमिली से मकबा फ़िक्र होता है, एक मिलता, वो क्या था? वही अहले सुन्नत वल जमात के थे। मतलब वो जी मेरी मामा ने जी गौस पाक का पढ़ना, वो क्या कहते हैं, वो एक पूरा क्या था उसको क्या कहते हैं मुर्जा, कसीदा पढ़ना जी। और हमने भी हमने वो हमें पढ़ के कसीदा गौसिया, कसीदा गौसिया वो पढ़ के, मतलब इमदाद कौन। हाँ ठीक है, वो पढ़ के उन्होंने हमें पिलाना जी। हमने बड़े खुश है गौस पाक में, अल्लाह पाक क्या चीज़ बनाई। ठीक है। ये तो जब फिर जमाने में होश संभाली तब इस चीज़ को हमने सीखा, इंजीनियर साहब को सुना। मुझे भी लोगों ने नेगेटिव तारुफ करवाया। उन्होंने कहा जी ये तो मरज़ई है,
ٹھیک ہے, یہ تو قادیانی ہے, ٹھیک ہے, اس کو نہیں سننا, مرتد ہو جاؤ گے, کافر ہو جائے گے, ٹھیک ہے نا. تو پھر چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھنے اس کے کہ مطلب جس میں انہیں بیان کرنی چیزیں, ٹھیک ہے. پھر چھوٹے کلپوں سے بڑی ویڈیوز کی طرف ہم سوئچ ہوئے, ٹھیک ہے. تو ان سے انسپائر ہوئے. تو پھر جب میں نے گھر والوں کو کہا کہ میرے اندر پیسہ ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, تپ گئے میرے گھر والے. نہیں تو تمہارا تھا یار, ایسے نہیں کرتے, پیار سے سمجھانا ہے, گھر والے ہیں. اور ابھی تک سارے تپے پڑے ہیں. اچھا, آج ان کو پتہ ہے ادھر آئے ہو؟ ہاں پتہ ہے, والدہ کو تو میں بتا گیا ہوں, باقی تصویر جب لگاؤں گا پتہ لگ جائے گا کہ میں کہاں گیا ہوں. اچھا, فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ فرسٹ ٹائم. کیسا تھا ایکسپیرینس آج کا؟ الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. آج فرسٹ ٹائم سنا ان کو لائیو؟ بالکل فرسٹ ٹائم سنا. یہاں کی روحانیت, کیفیت کیا بتاؤ نا, وہ ویڈیوز میں دیکھ کر ادھر میں فرق ہے کچھ؟ مطلب آیا ہوں کافی اچھا محسوس ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ بات ہوتی ہے علمی اور کتابی ریفرنس دے کے. یہ نہیں ہے جی کہ 1965 میں جی وہ داتا صاحب نے بمب پکڑے اور ہم تب ماشاءاللہ کہتے سبحان اللہ کہتے تھے کہ بھائی کیا بات ہے. اچھا جی وہ غوث پاک نے اپنا مردے کو جی نظر مار کے اس کو مطلب جلا دیا, اور اس نے کیا کیا جی بس لوٹے کی جو ٹوٹی ہے وہ کعبے کی طرف کر دی. کیا نون سینس ہے یار. میں یہ چیزیں سوچ کے میں ایک دفعہ دنگ رہ گیا کہ ایک پیر صاحب اپنے مرید کو یہ نگاہ مار کے جلا دیتے تھے تب. اللہ اکبر. یہ سوچنے کی دیکھیں سکت بھی تو ابھی ہمیں آئی ہے نا. وہ انجینئر صاحب نے جو کریٹیکل تھنکنگ ہمیں سکھائی ہے, الحمدللہ وہ نیک انسان تھے اللہ کے. بٹ جو ان سے منسوخ کی گئی ہیں چیزیں انہوں نے کہانیاں کہ وہ مطلب اس طرح کی چیزیں کرتے تھے, کرامات مردہ زندہ کر دیتے تھے, تو یہ سب نہیں. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. چلیں, آپ کا آنا یہاں پہ اللہ کے لیے آپ نے سفر کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو قبول فرمائے. اور یہ ہے کہ بھی اب جو ہے نا گھر والوں کو بھی پیار سے سمجھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ حسن رفیق نام ہے, میں گجرانوالہ سے آیا ہوں. اچھا بھائی, آپ آگے ہیں تھوڑا سا. کیا نام ہے بھیا؟ میرا محمد سلمان خان, میں بھی گجرانوالہ سے. کٹھے ہیں جی؟ دوست ہیں, بھائی ہیں؟ جی کزن صاحب. کزن محمد آزاد بھائی. اچھا جی, یہ بتائیں کس نے کس کو تعارف کروایا تھا؟ خود بخود ہوا انجینئر صاحب کا؟ اصل میں کیا سٹوری ہے؟ 2019 میں جب کووڈ تھا, اس میں بہت ساری چیزوں پہ ریسرچ کرنے کی کوشش کی. صحیح ہے, کیونکہ قرآن ہمیں شروع سے ہی کہتا ہے کہ آپ نے تحقیق کی طرف سے آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ علیحدہ سے بات ہے کہ ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دودھ اگر لینا ہے نا تو وہ گائے کے تھن سے ملے گا, اگر آپ حوالے لیں گے تو پھر معاملات زندگی کے خراب. بالکل ایسے. تو ہمیں جو دین سکھایا گیا بیسیکلی وہ آرٹیکولیٹڈ تھا, اس میں مینیپولیشن کافی زیادہ تھی, اور وہ ہمیں انڈائریکٹ طریقے سے پہنچایا گیا تھا. اب کسی اور کی کتابوں کے حوالے دے کے. تو انجینئر صاحب کو جب میں نے سننا شروع کیا, تو چونکہ میں خود ریسرچ کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے ایم فل کیا ہوگا پنجاب یونیورسٹی گوجرانوالہ کیمپس سے, تو میں اس طرف آیا. میں نے کہا کیوں نہ اس پہ تحقیق کی جائے اور اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں کہ آیا یہ راستہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر یہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے تو کون سی چیزیں اس کے تضاد میں ہیں جو کانٹراڈکٹری ہیں, جو اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ پیش کی جاتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کے پاس جو کہتے ہیں نا کسی بھی آپ نے اگر مسلک پہ بحث کرنی ہے تو آپ کی فاؤنڈیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو کل کو اگر ہم معاشرے میں نکلیں گے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اگر ہم ان فرقہ واریت کو اگر ہم نے ڈیفیٹ کرنا ہے تو اس کے اگینسٹ ہمارے پاس قرآن و سنت کا نالج جو ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو جب میں نے اس پہ ریسرچ شروع کی تو میں نے ڈیفینیٹ بات ہے سب سے پہلے میں نے رفع یدین سے کام شروع کیا, اور ہمیشہ کی طرح جو جس مسجد میں جاتا تھا وہ دیوبند کی مسجد تھی. ویسے تو کسی بھی مسجد سے اختلاف نہیں, ہر مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں, لیکن جب میں نے رفع یدین کے بعد پہلی نماز پڑھی تو میں نے اونچی آواز میں آمین کی. اچھا. تو وہ جو قاری صاحب تھے میرے, وہ انہوں نے آ کے کہا کہ آپ نے تو بالکل ہی جو دو طریقے ہیں وہ ہماری مساجد والے چھوڑ دیے. ٹھیک ہے. تو کل سے آپ نے تکبیر نہیں پڑھنی میرے پیچھے. اچھا, اب پہلے آپ پڑھتے تھے؟ جی ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کر سب کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پھر مجھے وہ کہنے لگ گیا کہ میں آپ کو صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ نماز پڑھنا سکھاتا ہوں اہل حدیث کے مطابق. قاری صاحب کہتے ہیں؟ قاری صاحب کہتے ہیں. اچھا. تو میں نے قاری صاحب سے ایک بات کہی, جیسے انجینئر بھائی بھی کہتے ہیں کہ جی آپ پھکی دیں, تو میں قاری صاحب جس دن آپ نے شروع کر دیا نا تو آپ کا چندہ بند ہو جانا مسجد کی وجہ سے, اور آپ کی ڈیوٹی بھی ختم ہو جانی ہے. جو انتظامیہ انہوں نے آپ کو اٹھا کے کہیں اور پھینک دینا ہے. تو جیسے یہ بات کرنی ہوئی تو وہ پھر وہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ نہیں اس طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد ایک اور میں بریلوی کی مسجد میں گیا, میرے اسٹوڈنٹ کی مسجد سے انہوں نے بنوائی تھی, تو وہاں کے جو امام صاحب تھے انہوں نے میرے سے تھوڑے سے دلائل جو ہے نا وہ رفع یدین پہ لینا شروع کر دیے.
تو وہ میں نے ان سے کہا کہ سر آپ مجھے نا ایک حدیث اس کی منسوخ پہ جو ہے نا ایک حدیث لا دیں. تو وہ عبداللہ بن مسعود والی وہ حدیث مجھے پتہ تھی. ٹھیک ہے, میں نے کہا اس میں طریقہ بتایا گیا ہے, منسوخ کی بات نہیں ہے. پھر میں نے ان کو کچھ ریفرنسز دیے, جیسے 735 بخاری وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے 739 تک جو ہے نا حدیث کا یہ متواتر حدیث ہے. پھر میں نے ان کے ریفرنسز دیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم امام اعظم جن کو وہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں, جن کو ہم مانتے ہیں. پھر میں نے ان کا قول ان کو بتایا. میں نے کہا ان کا قول تھا کہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات ملتی ہے تو میری اس بات کو دیوار پہ مار دینا. تو میں نے کہا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں. پھر میں نے صحیح بخاری کا ایک مقدمہ تھا جس میں ان کے صحیح بخاری کے جو امام مبارک تھے, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, امام بخاری نے ایک بک لکھی تھی جز رفع یدین پہ. جی جی, اس پہ وہ پورا ان کا واقعہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ اڑنے لگے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اگر اڑنا ہوتا تو میں پہلی تکبیر میں اڑ جاتا. تو اس طرح کے معاملات تھے. تو اس چیز کو تحقیق کرنے کے بعد یقین کریں سب سے بڑی بات, یا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے عقائد ہیں نا, اگر ہم اس میں مضبوط ہیں تو ہم مسلمان بھی ہیں اور جنت میں بھی ہم جا سکتے ہیں, جس کے ہم خواہش مند ہیں, سارے خواہش مند ہیں. لیکن جہاں پہ عقائد کا بگاڑ آتا ہے وہاں پہ مسائل خراب ہیں. اچھا, جب تحقیق کر لی, ایک راستہ نظر آ گیا, پھر آگے بھی سکھایا, گھر والوں کو, دوستوں کو دعوت بھی شروع کی. سب سے پہلے تو میں نے اپنی مسز کو قائل کیا. بالکل صحیح ہے, کیونکہ وہ رفع یدین نہیں کرتی تھی, میں رفع یدین کرتا تھا. میری مسز نے رفع یدین شروع کیا ماشاءاللہ. اس کے بعد میں نے اپنی سسٹرز کو کہا بالکل صحیح ہے. مدر میری کہتی تھی کہ چونکہ ہم نے جو میرے بڑے جو تھے وہ یہ کرتے تھے. میں نے کہا پھر آپ تو وہی بات کرتی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام والی ہے. جب انہوں نے اپنے باپ آزر کو کہا کہ جی دین کی طرف آ جائے جس دین کا میں پیروکار ہوں, تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے باو جداد کے دین کو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا نہیں. میں نے پھر لیکن چونکہ ماں ہے, ماں کے ساتھ پیار سے طریقے سے اخلاق سے, لیکن ان کو آہستہ آہستہ قائل کرنے کی کوشش کی. پھر سیکنڈ یہ تھا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے اہل سنت میں بریلوی اور دیوبندی بڑے ہیں, اور اس میں نا میں کلوں کی طرف بڑا متوجہ تھا, جو جس کو کہتے ہیں نا آفٹر نیکسٹ ڈے آف دا ڈیتھ, وہ کل جو ہوتے ہیں, اس چیز کو میں نے کنڈیم کرنا شروع کر دیا. صحیح ہے. پھر میں کلوں پہ بھی نہیں لوگوں کے جاتا تھا, اور میں خود اس چیز کو ریسنٹلی میرے ماموں کی بھی ڈیتھ ہوئی, تو انہوں نے مشاورت سے کہا, انہوں نے کہا جی کل کرنے ہیں. میں نے کہا میں تو بھائی سرے سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اس چیز پہ, یہ چیز نہیں ہے. 3 دن کا سوگا, اس سے بہتر آپ کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں, کسی کی شادی کروا دیں, کسی کے ایسے کنٹریبیوشن کر لیں. باقی جو چیز اسلام میں نہیں ہے ہم وہ کانسیپٹ کو لانچ نہیں کرنا چاہتے. تو بہت ساری چیزیں ایسی تبلیغ بھی کی. ایون کہ فیس بک پہ جب یہ چیزیں اپلوڈ کی تو بہت سارے لوگوں نے کرٹیسزم بھی کیا, لیکن ہمیشہ سب کے سامنے دلائل کے ساتھ بات کی. ان سے کہا کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے قرآن حدیث سے جس سے آپ سمجھتے ہیں, آپ مجھے قائل کر سکتے ہیں, تو میں حاضر ہوں. جس دن اگر وہ اوتھینٹک مجھے ملے گی میں وہ چیز اڈاپٹ کر لوں گا. اگر میرے ایک اسی طرح کے امام مسجد ان سے بھی میری بحث, وہ کہتے تھے آپ رفع یدین کیوں کرتے ہیں. میں نے کہا کل صاحب میں نے جو ہماری 6 کتابیں ہیں حدیث کی, ان میں کم و بیش 150 سے زائد جو ہے نا وہ احادیث جو ہے نا وہ رفع یدین پہ ہیں. تو آپ تو ایک حدیث پہ رفع یدین نہیں کرتے, تو میں کیسے 150 حدیث پڑھنے کے بعد رفع یدین چھوڑ دوں. اچھا, اس بھائی کو پھر جو آپ کے کزن بھی ہیں, آپ نے تعارف کرایا تھا یا خود ہوا تھا؟ اصل میں ہم چونکہ ایج فیلو ہیں کزن, صحیح ہے, مثلا ایسے جب شیئر کرنا تو بھائیوں نے بھی سنی, کزن نے بھی سنی. تو کچھ یہ سعودی عرب میں تھے, اور وہاں کی پریکٹسز آپ کو پتہ ہے اہل حدیث والی زیادہ پریکٹسز ہیں. ایون کہ آپ کو واقعات شیئر بھی کریں گے جب انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا. ایون کہ جب یہ قرآن کا وہ تفسیر پڑھتے تھے, تفسیر وغیرہ, تو وہ جو اہل حدیث وہ جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی اس چیز کا انکار کر دیتے تھے. اچھا, یہ بتائیں آپ کو انجینئر صاحب کا تعارف کب کیسے ہوا؟ انجینئر صاحب کا تعارف مجھے سعودی عرب میں ہی ہوا. ٹھیک ہے, اور میں نیگیٹو پازیٹیو؟ نیگیٹو ہی ہوا. اچھا, پہلے میں سنتا تھا مکی جادی صاحب جو حرم میں بیٹھتے. جی پتہ, جی پتہ. تو میں بڑے شوق سے ان کو سنتا تھا. تو وہ بڑے گندے سوال لیتے ہیں وہ, خیر وہ سنتے تھے. جی نہیں. اچھا, وہ تو جان بوجھ کے ان کو تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں باتیں. لیکن ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ انجینئر کے بارے میں آپ کا کیا مرضہ ہے, تو قادیانی بھی ہوگا. ہاں جی, تو کیا آپ کی رائے ہے اس کے بارے میں, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو انجینئر ہے, اس کے پاس تو مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. باقی جس کو بھی میں نے دیکھا انہوں نے کہا جی انجینئر جو ہے نا یہ گمراہ ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, یعنی کہ بڑی جو ہے غزال اندر کا گند جو ہے نا وہ باہر نکال. ایسے ہے. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے ایسی کلپ میرے پاس آیا. میں نے کہا جو بندہ قرآن پکڑ کے
कुरान की बात करो तो वो कैसे हो सकता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट क्लिप से फुल क्लिप पे आए, आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वो रेफरेंस से बातें, कुरान से बातें, हदीस से बातें, फिर मैंने इस्लाम 360 से मैंने वो जब रेफरेंसेस देखे जब जब मेरा दिमाग खुला तो फिर मेरे अंदर एक वो आग सी लगी कि भाई मैं भी ना ये बताऊं सबको, और मेरे उधर हैं दोस्त जिनको मैंने चाहा कि मैं बताऊं और भी लोग, लेकिन वो जो है वो अपने इनके बाव अजदाद जो बरेलवी हैं या दो बंदी हैं जिनकी तरबियत ऐसी हुई है तो उनको थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम आया जी, मैं फर्स्ट टाइम आया। मैं आज का प्रोग्राम कैसा था, इसके बारे में क्या? बारकल्लाह, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, दिली ख्वाहिश थी एक मिलने की। मैं बेसिकली सऊदीया से डायरेक्ट आया था इसी मामले में कि इनसे इंशाल्लाह होगी मुलाकात। गेंद पिक्चर बनवा के हैं, तस्वीर बनवा के होगी मुलाकात। हाँ जी, चलो जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली अली भाई को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी मैं मुल्तान से आया हूँ, एक स्कूल का डायरेक्टर हूँ। अच्छा। तो मैंने अली भाई को जब सुनना शुरू किया था तो कुछ अमल शुरू किया था तो मेरे दिल में ख्याल आता था कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो फिर नहीं, अमल जो शुरू किया था, हाँ, रफ़ा दैन था, दरबारों पे कुछ भी था, उसकी दलील क्या थी? अली भाई को सुनना शुरू अच्छा, किया। तो वेरिफिकेशन ही, आप डायरेक्टर हैं, वेरिफिकेशन तो करें। अली भाई तो रेफरेंस के बाद शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी दिल में जब फैमिली को देखता था, उनके रिएक्शन देखता था, रिटेलिएशन देखता था। मेरा क्वेश्चन ये है कि अली भाई ने एक बात की, आपने सुननी शुरू कर दी, आपने उसका रेफरेंस देखा? हाँ, देखा। तो फिर तो सुल्ला की बात है ना, फिर तो हमारी तो बात ही नहीं खत्म। वालिद की रेजिस्टेंस और सोसाइटी की, वो फिर बच्चे मेरे स्टूडेंट्स, वो सवालात उनके पेरेंट्स के, ये आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किलात, यानी कि मेरी मईशत के ऊपर, यानी कि मेरे फाइनेंस के ऊपर भी बहुत मुझे परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। फिर यकीन करें, अब मैं जो बात करने लगा हूँ, जो मेरा असल मैसेज है वो सिर्फ अली भाई के दिलजोई के लिए मैं ये बात करना चाहता हूँ। किसी के लिए उसकी वक़्त हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत है कि मैंने ख्वाब में देखा, ये जो कैमरामैन आप ही हैं, आपकी जगह पे मैं बैठा हूँ, सामने कोई शख्सियत अली भाई की जगह पर है, इर्द गिर्द लोग नज़र नहीं आ रहे, पीछे से अली भाई आते हैं और मैं देख रहा हूँ कौन है। मेरी अकेडमी पहली दफ़ा है, वो शायद आखिरी दफ़ा होगा, मैंने कैमरे में भी कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देखा है। अच्छा। तो मैं यहाँ बैठा होता हूँ, पीछे से अली भाई आते हैं, मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं, मैं पूछता हूँ अली भाई ये कौन शख्सियत आप तो यहाँ है? तो मुझे कहते हैं वो रसूलुल्लाह। और इतनी मुझे खुशी होती है। उस दिन के बाद मैंने सोच लिया चाहे मेरा वालिद का है या वालिदा का है, ये वो शख्स है जिसमें रसूलुल्लाह का रास्ता दिखा, इनको मैं कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन आपने इस पे इतने प्यारे ख्वाब में मुझे निकाल दिया। ये आपकी जगह पे मैं ही था और यकीन करें ये रूए अर्ज़ पे मेरी बीवी के बाद अब आपको पता चला, और इंशाल्लाह आप अली भाई को लाजमी अली भाई ये सारी वीडियोस, ये सारा सर्वे खुद सुनते हैं, लाजमी ये हाँ। बात करें। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप माशाल्लाह डायरेक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप कह रहे हैं फाइनेंस पे भी असर पड़ा और ये मतलब जब बताना पड़ रहा है, रेजिस्टेंस का सामना भी है, तो सहाबा की लाइफ पढ़ी, रसूलुल्लाह की खुद लाइफ पढ़ी, मैं हिस्ट्री हूँ। अब पता चला? बिल्कुल बिल्कुल। अब पता चला? तो अब एक आवा ही बिगड़ा हुआ है सारा। अब पता चला सर, सामने जब बाप और बेटा होते थे तो क्या जिगरे थे उनके, जब उन्होंने बिल्कुल हिजरत की और घर बार छोड़ के निकले खाली हाथ। नामुमकिन। हम तो अपने कारोबार पे भी फर्क नहीं आने देते। सिर्फ 23 साल में उन्होंने क्या से क्या कर दिया, क्या बहुत शुक्रिया। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, आप में से कोई एक बंदा बात कर लीजिए जिससे। जी भैया, क्या नाम है आपका? रज़ा भाई। आपका? मोहम्मद खावर भाई। आप? उमैर। तलहा। कमर भाई। मोहम्मद आबिद भाई। मोहसिन भाई। सब इकट्ठे हो? सरगोदा से। माशाल्लाह, सरगोदा शहीदों का शहर। अच्छा जी, कैसे आना हुआ? अली भाई के पास हाजिरी देने आए थे। अच्छा, दरबार है? 4-5 साल नहीं आना चाह रहे थे, काफ़ी देर से प्लान कर रहे थे। 4 साल से वीडियो से फॉलो कर रहे हैं, तो एक बार हम चाह रहे थे इधर आए, लाइव देखें क्या है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है। ये सब दोस्त हो? हाँ जी, सब दोस्त हैं। दोस्त पहले से थे? इंजीनियर साहब के ऊपर भी कैसे इकट्ठे हुए? मतलब होता ना दोस्तों में एक बंदा सुन रहा है, 2 मुखालफ भी हो गए, तो आप सब दोस्त कैसे हैं? इंडिविजुअली या दोस्ती इस बेस पे हुई है कि सब इंजीनियर को सुनते थे? नहीं, वैसे कजन्स भी हैं इनमें, हम दोस्त भी हैं। अच्छा। एक ही गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। तो वीडियोस इनके देखते थे, फिर सब बैठ के रात को क्रिटिकल एनालिसिस करते थे। माशाल्लाह। तो फिर इरादा बनाया कि जाएं उधर और जाके विजिट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सफ़र भी अच्छा रहा। सब मान गए? हाँ जी, सब इजीली मान गए अपने फिर के सब इधर से आके जो दावत तबलीग का जो अली भाई ने जो आज पैटर्न बताया ना, वो उसमें जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आइडिया दिया उन्होंने, जो मामला है ना मार गए बहुत पहले के काफ़ी। नहीं, तो आपकी फैमिलियों के क्या स्टेटस हैं, बाकी बड़ों के क्या स्टेटस है? थोड़ा बागी समझ रहे हैं। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह ताला वो भी राह रास्त पे आ जाएंगे जैसे हम आए हैं।
अभी ये वीडियो जो पैटर्न दिया है ना इन्होंने, इससे इंशाल्लाह कोई काफ़ी हद तक अफाका होगा इंशाल्लाह फकीयों से ना। पिक्चर लगाएंगे जाके फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, थोड़ा और इस फकी में इजाफा होगा। और सबसे मज़े की बात ये लगी कि आज वो जो है ना नारा अली भाई का जो फेमस है सबसे ज़्यादा, वो यूट्यूब पे देखने का इतना मज़ा नहीं है जो आज लाइव देखने का मज़ा है। बाबे ते शाही को, अच्छा नारा लिखा दे जरा सारे, मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। चलो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भैया? मुसद्दिक भाई, किधर से हैं? फैसलाबाद से। अकेले आए? हाँ अकेले। अच्छा, सबसे पहले तो अली भाई से ये कि इतनी सुबह से निकले, इतना टाइम निकाल के, और बाहर ही बैठे रहे, अंदर बुलाया ही नहीं किसी ने। कब बस कितने बजे तक बाहर बैठे रहे हैं? अभी तकरीबन 12-1 बजे तक। आए कितने बजे हैं? 10:15 बजे। हाँ, पहली बात तो ये है कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। अगर आप 10:15 पहुंचे हैं ना, तो जो बंदा 6 बजे पहुंचा है, हाँ किसका बनता है? उसका। हाँ तो बस, तो हमारा भी लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद अली भाई ने जब रोटेशन करवाते हैं कि जो अंदर लोग होते हैं बाहर, आप उस वक्त थे बाहर जब पहला आए थे फिर अंदर? इधर बिठा लिया उन्होंने अंदर। एक स्टेप तो था हुआ ना? हाँ एक स्टेप था। आखिर में मुलाकात हुई अंदर? अभी तो हुई मुलाकात। फिर देख लेना, मकसद पूरा होना भाई यार। नहीं अभी देखा तो नहीं देख अंदर तो हो है ना? हाँ तो देख लिया, हाथ भी मिला लिया। लेकिन सुना तो नहीं ना, वीडियो में देखते रहते हैं, वैसे तो लाइव थोड़ा बहुत तो देख ही लिया होगा। अगर इधर आ गए थे तो देख तो नहीं होगा। उधर ही बैठ रहे उस साइड से। हाँ चले, आज असल में ना एक मुहर्रम की वजह से ना छुट्टियाँ थी ना, इसलिए देखिए रश कितना ज़्यादा था। नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस हाल में इतने लोग होते बाहर तक आ जाते हैं, लेकिन इतने होते हैं कि भी हमारा अच्छा मैनेज हो रहा है। लेकिन आज रूटीन से ज़्यादा बंदे आ गए। हाँ ये इस दफ़ा हुआ क्योंकि छुट्टियाँ थी ना, रूटीन से ज़्यादा बंदे, इसलिए तो आपने देखा होगा वीडियोज़ में इंजीनियर साहब बार बार कहते हैं जो एक दफ़ा आए वो दोबारा नहीं आना। इस वजह से तो अफसोस है कि देखा ही नहीं है उनको लाइव, नहीं चले, यही तो अफसोस है यार। इससे बड़ा तो आपने अचीव कर लिया, वो अंदर जाके उनसे मिल लिया। मिल तो लिया, लेकिन वो भी क्या गए। अच्छा आपके पास 2 ऑप्शन हो, एक बंदे के साथ मुलाकात करनी जिसको आप पसंद करते हैं, यानी हाथ मिलाना, या खाली उसको देखना, तो क्या लेंगे? हाथ मिलाना। तो मिल लिया ना यार, वही तो ले लिया ना। वो मिला ना, वो पैकेज मिल गया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू और है, हमारा और है कि हम दूर से आए। नहीं वो आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि जो बंदे पहले आए टाइम निकाल के अपने काम से टाइम, कोई शक नहीं है। आपको पता है इंजीनियर साहब हर अनाउंसमेंट में आखिर में ये कहते हैं कि आज के इस मॉडर्न दौर में लोग पैसे खर्च के आते हैं, बड़ी बात है, लेकिन मसला वही है कि जो लोग पहले आए और रश भी ज़्यादा था, फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, जो सुना कैसा था प्रोग्राम? अभी बाहर से सुना, अच्छा था, बहुत अच्छा। ओ भजन सुन तो लिया ना, कानों में आवाज़ तो आई ना, बहुत अच्छा। एक शिकवा तो है वो मान लिया सर। इतने अरसे सुन रहे हैं, जो भी कह रहे हैं इंजीनियर साहब अच्छा कह रहे हैं। और इससे पहले कौन सा मकतबा फ़िक्र था? कोई ख़ास नहीं था, कोई पढ़े लिखे थे, इस वजह से किसी को ख़ास। इंजीनियर साहब का जब तारुफ हुआ पहली दफ़ा, नेगेटिव था पॉजिटिव था? पॉजिटिव था। हाँ मेरे सबऑर्डिनेट थे, मेरे कॉलीग वगैरह, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव थे, तो इस वजह से उसने मुझे बताया, तो फिर मैं इस वजह से सुनना शुरू किया। क्या लगता है इंजीनियर साहब से दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा, अली भाई से सीखा। वरना अभी देखे ना फरहान भाई, अभी मेरी उम्र 45, शायद आपकी भी इतनी हो या इससे कम हो, लेकिन हमारे दौर में ये था कि हम जब थे ना, मोबाइल नहीं था ऐसे, तो हम तो दुनिया के रिसाले, डाइजेस्ट सब कुछ पढ़ डाला, और जो पढ़ने वाला था वो नहीं पढ़ा। जो नहीं, अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत बात की है, सही बात। जो अली भाई मोहसन है, अगर अली भाई ना होते तो इसी तरह दुनिया से चले जाते, ना किसी को तो ना किसी को कुछ बता सकते, बस यही अली भाई मोहसन है, उनसे मिलना था, मिल लिया, दिल को सुकून है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। जो आपकी मोहब्बत है ना, ये अल्लाह के लिए। हाँ जी, अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए जी अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। ये किसी में कोई साथ नहीं, आप अल्लाह के लिए आए हैं अली से मिलने। हाँ अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे, आपको जज़ाए खैर दे, और ये दावत का काम चल भी रहा है फैमिली में, आगे दोस्तों में। हाँ जी, दोस्तों में हमारा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम उनका था, पहुँचा देना जी। मैंने एक बात सुनी, मैंने अपने घर वालों को बताई, अपनी बहनों को बताई, भाइयों कज़नों को, जो साथियों को छोटे हैं मुझसे, मेरे मातहत हैं या जो भी है, मैंने सबको बता दिया। अभी मानना या ना मानना उनका काम, हमारा काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का बिल्कुल हक अदा कर दिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।